Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning. Morning, ma'am. Good morning. Good morning, ma'am. Good morning. In a previous class, we have already understood about the climatic controls, how the climate is controlled by the Yes, ma'am. various uh, elements. By the uh, 6 major by the elements: elements. Which are these various elements? Latitude, latitude, altitude, pressure, and wind system, distance from the sea, ocean currents, and relief features. very good, very good. So, can anybody tell me what do you mean by latitude? Ma'am, due to the curvature of the earth, the amount of the solar energy received varies according to the latitude. Very good. Due to the curvature of the earth, the amount of energy which is from taken away from the sun straight away falls on the front latitude, that is near the equator only. That Equator. that helps in the climatic control. That is very hot will be there. Altitude, Ma'am, altitude. altitude. Ma'am, as one goes from the surface of the earth to higher altitude. Yes, high altitude. Altitude means the height. Height Height, means ma'am. the higher above. Then next is pressure and wind system. Pressure and wind system. Ma'am, the pressure and wind system of any area depend on the latitude and the altitude of the place. Very good. The pressure and wind system depends on latitude and Rainfall altitude and of the pressure and wind system जो भी है वो yes, ma'am. altitude और latitude पे depend करता है. Depend. Then the distance from the sea. Ma'am, the sea exerts a moderating influence on climate. As the distance from the sea increases, its moderating influence decreases, and the people experience extreme weather conditions. Yes, as you are near the sea, then the influence will be moderating. The wind will be what? Cool breeze will be there. But as soon as you leave that part near the sea area, you go apart from the sea area towards the far, means towards Delhi and all. Now this sea area, distance from the sea area, we can talk about example of the coastal areas, the areas near the coast. They have the moderating influence, and as soon as you move interior of the our country India, that is in the Delhi side and all, that is you will be moving away from the coastal areas. There you will experience the Okay, ma'am. extreme weather conditions. Then about the ocean currents, what are ocean currents? Ma'am, ocean currents along with the onshore winds affect the climate of the coastal areas. But what are ocean currents? What actually ocean currents are? Ma'am, very hot during summers Ma'am, and very very cold hot during during summer and winters. very cold during winters. This is all, but actually what ocean currents Yes, are? ma'am. They are the streams of water. What actually the ocean currents are? They are the streams of water that The move in streams the of water. same direction throughout the year. पूरे साल भर वो एक ही डायरेक्शन में मूव करते हैं. जब एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगे तो डेफिनेटली what will happen? The currents will be there. The two types of ocean Yes, ma'am. currents are there: warm currents and cold currents. Cold currents. Then we have read also about the relief features. Relief features means Ma'am, relief plays two major roles in determining climate of a place. High mountain act as a barriers for cold or hot winds. yes. So relief features means a type of land pattern over there of a particular area, whether it is hilly area, whether it is plain area, or whether it is valleys. What type of relief or what type of physical feature that area is having, that also helps in the climatic controls. Then we have also read about factors affecting India's climate. What all factors affecting? The same factors: latitude, latitude. Altitude, Altitude, First we talk about latitude. latitude, The Tropic of Cancer passes through the middle middle of middle of the Mizoram country from the in the Rana and west to run Kutch of Mizoram in in the the east. west out of Mizoram.
in Yes. the east. Yes, run of Kutch in the west to Mizoram in the east, that is in the center. East. So almost half of the country, half of which country? Lying in the south. Half of which country we are talking about here? Ma'am, India. Mizoram. India. Half of India. yes, India. Almost half of the country lying south of the Tropic of Cancer belongs to the tropical area. Now, Tropic of Cancer just passes the center. In the Yes. also you are seeing. Yes, Tropic of Cancer is passing just from the center, and almost half of the area, southern area, is in the which part? India. Tropical area. Tropical area. See, almost half of the country lying to the south of Tropic of Cancer. ज़्यादा से ज़्यादा south of the Tropic of Cancer belongs to the tropical area. ज़्यादातर area tropical area है. Till where we can say that जब तक कि वो temperate region, after tropical region, which region starts? Temperate only ना? Temperate boundary starts, and after temperate, the polar region starts, है ना? हाँ, पोलर रीजन. उसमें भी ट्रॉपिकल के बाद भी सब ट्रॉपिकल है. सब ट्रॉपिकल के बाद फिर टेम्परेट एकदम स्टार्ट हो जाता है. टेम्परेट के बाद फिर पोलर रीजन आ जाता है, फ्रिजिड जोन्स एंड ऑल, है ना. तो वी कैन से दैट ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द कंट्री लाइंग साउथ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिलोंग्स टू द ट्रॉपिकल एरिया. All the remaining area that is north of tropic lies to the subtropical areas. Therefore, India's climate is characterized as tropical as well as subtropical. Tropical कहलाया जाएगा और subtropical भी कहलाया जाएगा, because here near the equator it will be tropical area, and then as soon as we move away from the equator it will be subtropical area. Clear? Yes, ma'am. Then coming back to the altitude. Now, what is altitude? Average height above. Ma'am, height. Yes, India has mountains. Which mountain? Height about 600 meters. 6,000 meters. Yes, mountains. 6,000 meters. India is having mountains like Himalayas. We can say Himalayas prevent the cold wind from Central Asia. यहाँ Central Asia से जो cold winds आती हैं, ये यहाँ से जो ये cold winds आती है, तो यहाँ पर एक तरीके से ये हिमालयस जो है यहाँ पर ये बैरियर का काम करते हैं, है ना, from entering the subcontinent. It is because of these mountains only that this subcontinent experience comparatively milder winters. अगर यहाँ एशिया से, अगर ये यहाँ पर हिमालयस नहीं हो, मान लो यहाँ हमारे हिमालयस नहीं हो ये, तो क्या होगा? डायरेक्ट क्या सेंट्रल एशिया से यहाँ पर जो कोल्ड विंड्स आएगी वो डायरेक्ट पेनिट्रेट करेगी इनसाइड ऑफ आवर कंट्री, और यहाँ पर बहुत ज्यादा ठंड पड़ने लग जाएगी, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट विल बी देयर. बट ड्यू टू दिस बैरियर ऑफ हिमालयस, दिस कोल्ड विंड्स डू नॉट पेनिट्रेट इजीली, और इसीलिए यहाँ पर माइल्डर विंटर्स होती है. माइल्ड विंटर्स मीन्स बहुत ज्यादा एक्सट्रीम कंडीशन नहीं होती है यहाँ पर सर्दी की. क्लियर? Yes, ma'am. Okay, then Yes, ma'am. okay, then coming to next, pressure and winds. Now pressure and winds, the climate associated with weather condition in area are governed by the following atmospheric conditions, that is pressure and winds. Pressure and surface wind. Pressure and surface wind, ये कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम? जैसे अब मैं आपको हाँ, जैसे मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, ये अर्थ है, ठीक है, ऐसे मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ थोड़ा सा. ये अर्थ है, चलो मैं इसको लाइन को ही ले लेती हूँ बीच में एज एन इक्वेटर. दिस इज अ अर्थ, ठीक है, एंड दिस इज व्हाट? इक्वेटर, 0 डिग्री. क्लियर? दिस ब्लू लाइन इज इक्वेटर, 0 डिग्री. अब यहाँ पर से सन रेज आर फॉलिंग डायरेक्टली. अब सन रेज कहाँ पर फॉल करेंगी? यहाँ पर डायरेक्टली, यहाँ सामने की तरफ, लैटिट्यूड्स यहाँ सामने की तरफ आएंगी. जब यहाँ सामने की तरफ सन रेज डायरेक्टली फॉल करेगी, तो यहाँ का जो प्रेशर बनेगा
विंड का प्रेशर क्या होगा, यहाँ पर लो प्रेशर बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पर, विंड का लो प्रेशर। अब जब यहाँ पर लो प्रेशर बनने लगेगा, तो जब लो प्रेशर बनेगा तो क्या होगा, विंड क्या करेगी, ऊपर की तरफ उठने लगेगी, विल राइज अप, ऊपर की तरफ राइज करने लगेगी कि नहीं। लो प्रेशर बनते ही जब यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा हीट पहुंचेगी, तो यहाँ पर हवा गर्म होगी, एयर गर्म होगी, यहाँ से प्रेशर बनने लगेगा, लो प्रेशर हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ से जब लो प्रेशर होने लगेगा, तो यहाँ से हीट विंड जो है ब्लो करने लगेगी ऊपर की तरफ। जब ऊपर की तरफ ब्लो करने लगेगी, तब वो कहीं ना कहीं तो सेटल होगी अर्थ पर। कहाँ सेटल होगी अब वो, अर्थ पे, जहां पर ये सन रेज डायरेक्टली नहीं पहुंच रही है, जहां पर सन रेज डायरेक्टली नहीं पहुंच रही है। तो जो यहाँ पर कर्वेचर है एक तो अर्थ का, तो यहाँ पर सन रेज डायरेक्टली नहीं पहुंच रही, तो ये जो विंड ब्लो करेगी ये यहाँ पर सेटल होने लग जाएगी। आई होप इट इज क्लियरिंग। तो यहाँ पर अब क्या बनेगा, हाई प्रेशर बनने लगेगा। यहाँ पर क्या बनने लगेगा, हाई प्रेशर बनने लगेगा। अब यहाँ पर हाई प्रेशर बनने लगेगा, फिर से यहाँ पर इसको, अब यहाँ पर जब हाई प्रेशर बनने लगेगा, विंड्स यहाँ पर आके अभी सेटल डाउन होने लगेगी। और जैसे ही ये लो प्रेशर से विंड्स ब्लो करके ऊपर जाने लगेगी, तो यहाँ पर क्या होगा, एक तरीके से वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, खाली जगह हो जाएगी, स्पेस हो जाएगी यहाँ पर। तो जैसे ही यहाँ पर स्पेस बनेगी, तो वापस से ये क्या होगा, यहाँ पर स्पेस बनने के लिए तो क्या होगा, यहाँ पर ये विंड्स जो उठी थी ऊपर, यहाँ पर लो प्रेशर हाई प्रेशर में यहाँ पर आकर के ठहर गई थी, वो वापस से सेटल डाउन होने लगेगी सरफेस ऑफ द अर्थ पे, वापस से लो प्रेशर बनने के लिए यहाँ पर आने लगेगी। तो एक तरीके से ये सर्कुलर मूवमेंट स्टार्ट रहेगा। समझ में आ रहा है बेटा? यस मैम। नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है तो क्लियर बता देना, ठीक है ना। ये देखो, ये यहाँ पर इक्वेटर के पास ज्यादा से ज्यादा हीट पहुंचेगी, डायरेक्ट इन फ्रंट ऑफ द सन रेज है, तो यहाँ से ज्यादा अब यहाँ पर लो प्रेशर बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हीट अप हो जाएगा यहाँ से ज्यादा, तो विंड ब्लो करने लगेगी ऊपर की तरफ। अब जब ऊपर की तरफ जहाँ पर हीट नहीं पहुंच रही, सन रेज डायरेक्टली पहुंच नहीं पा रही है अर्थ की कर्वेचर पर ऊपर, वहां जाकर ये विंड सेटल होने लग जाएंगी, तो वहां पर हाई प्रेशर बनने लग जाएगा। जब वहां पर हाई प्रेशर बनने लग जाएगा और ये लो प्रेशर के एरिया से जब वैक्यूम क्रिएट होने लगेगा, यहाँ पर खाली स्पेस मिलने लगेगा, तो ये विंड अपने आप नीचे की तरफ वापस से फ्लो करने लग जाएगी टू गेट द स्पेस फिल्ड अप। क्लियर? तो ये हाई प्रेशर और लो प्रेशर का ये फॉर्मूला कंटिन्यूशन में रहता है, and then it starts on the surface winds also, it start blowing on the surface area of the earth also, like this same formation. Clear? Okay मैम। The air masses, Yes, whatever the air masses are there, they rises up to the high temperature horizontally in the diverged form, and then subsiding wherever it finds the vacuum, जहाँ उनको स्पेस मिलेगी और वहां वो सब्सिडाइज होने लग जाते हैं। फिर वापस से यहाँ पर हीट मिल रही है, उनको प्रेशर मिल रहा है, ज्यादा से ज्यादा हीटअप हो रहा है, वापस से लो प्रेशर एरिया बन जाएगा यहाँ पर, वापस से ये विंड यहाँ से जो एयर वी कैन से मासेस हैं वो ब्लो करने लगेंगे ऊपर, और वापस से ये सर्कुलेशन प्रेशर एंड विंड्स का कंटिन्यूशन में रहेगा। क्लियर? yes ओके, नाउ सो अपर एयर सर्कुलेशन, और कभी कभी अपर एयर सर्कुलेशन, अभी ये मैंने ये इरेज कर दिया, बट अपर एयर सर्कुलेशन भी होता है। अपर एयर सर्कुलेशन कहाँ होगा, ऊपर की तरफ जो ये सर्कुलेशन हो रहा है यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है, अपर एयर सर्कुलेशन ही हो रहा है एक तरीके से। ये यहाँ से जो विंड ब्लो करके यहाँ आ रही है, ये व्हाट इज दिस, दिस इज अपर एयर सर्कुलेशन। क्लियर? Then west cyclone disturbances and tropical cyclones, this we will again read in clearly in this coming part of the lesson. Clear? yes ma'am। Okay, now here about the Coriolis force. Now they blow south, gets deflected. Now here it is. India lies in the region of northeasterly winds. Northeasterly winds. Now अब ये
विंड्स का डायरेक्शन बताया गया है, विंड्स का डायरेक्शन। अब विंड का डायरेक्शन हम कैसे बता सकते हैं? नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स बोल रहे हैं यहाँ पर, तो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स का मतलब क्या होगा? हम पहले ये डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। दिस इज विच एरिया? नॉर्दर्न एरिया। दिस इज विच एरिया? साउथ पार्ट। दिस इज विच एरिया? ईस्ट। दिस इज व्हाट? वेस्ट। अब यहाँ पर बोल रहे हैं नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स। नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स कैसे ब्लो करेंगी? जो नॉर्थ और ईस्ट की तरफ से आएंगी। क्लियर? अब जो नॉर्थ और ईस्ट की तरफ से आएंगी वो क्या हो जाएंगी? नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स, है ना। अब हम एक तरीके से ये जब हम ब्लो कर रही है, विंड्स कैसे ब्लो करेंगे, ऐसे हम डायरेक्शन बना दिया विंड ब्लो करने का। तो ये जो इसकी टेल है, इस एरो की टेल है, तो जहां पर इस एरो की टेल होगी वो एक तरीके से उस विंड का नाम उसके अकॉर्डिंग दिया जाता है। जैसे टेल इसकी किस तरफ है? नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स बोला जाएगा। अब यही सीजनल रिवर्सल होगा। अगर मान लो समर में यहाँ से बह रही है, विंटर में यहाँ से आ रही है, समर में यहाँ से बहेगी। सीजनल विंड्स है ना, मॉनसून विंड्स। मॉनसून विंड्स को सीजनल विंड्स कहा जाता है। यस और नो? अकॉर्डिंग टू द सीजन इट चेंज द डायरेक्शन। मॉनसून। Yes, ma'am. तो अब अगर मॉनसून में यस मैम। मॉनसून विंड्स जो हैं ये समर सीजन में वेस्ट और साउथ की तरफ से जो बहेगी नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो अब ये कौन सी हो गई? वेस्टर्ली विंड्स। कौन सी विंड्स हो गई? वेस्टर्ली विंड्स। वेस्ट की तरफ से बहती हुई वेस्ट साउथ विंड्स हो गई। क्लियर? क्योंकि ये अब डायरेक्शन क्या हो गया? ऊपर की तरफ, नॉर्थ ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो ये इस टाइप से। तो ये अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन इट इज कॉल्ड, कि ये कहाँ से बह करके आ रही है, दैट इज कॉल्ड एज नॉर्थ वेस्ट और साउथ वेस्ट। दैट इज साउथ वेस्ट विंड्स। यहाँ से मॉनसून की तरफ आएगी तो साउथ वेस्ट विंड। अब मैं इसको इरेज कर रही हूँ। आई होप दिस wind direction is clear. Yes, ma'am. Okay, fine. Now the they blow south gets deflected. अब south से blow करते हैं, now they gets deflected. Deflected means change the direction. Their direction. They change the direction to the right due to Coriolis force. Now what is Coriolis force? It is a natural force. Coriolis force is a natural force. It is generated due to the movement of the earth. कैसे जनरेट होता है Coriolis force? Movement of the earth की वजह से ये Coriolis force जनरेट होता है। Clear? It is a natural force generated due to the movement of the earth and change the direction of northern hemisphere to the right and southern hemisphere to the left. और ये विंड का डायरेक्शन चेंज कर देते हैं। डिफ्लेक्टेड द डायरेक्शन ऑफ द विंड, नॉर्थ हेमिस्फीयर में राइट की तरफ मोड़ देते हैं और साउथ की तरफ ऐसे डायरेक्शन, कॉर्डियस फोर्स विंड का डायरेक्शन इस टाइप से चेंज कर देता है। क्लियर? सो इट इज अ नेचुरल वी कैन से फोर्स, इट इज क्रिएटेड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द अर्थ। मूवमेंट अर्थ में हो रहा है, कौन सा मूवमेंट हो रहा है? रोटेशन। रोटेशन कैसे होता है? रोटेशन कैसे होता है? दो मूवमेंट होते हैं, रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। रोटेशन कैसे होता है? Ma'am, by moving on its place only. वेरी गुड, ऑन इट्स एक्सिस, अपने On its एक्सिस पे ही ये रोटेट कर रही है अर्थ, दैट इज कॉल्ड एज रोटेशन, है ना। तो इसके मूवमेंट से ये कॉर्डियस फोर्स जनरेट होता है and then as soon as this Coriolis force is generated, it start deflecting the wind north to the north hemisphere, right, and to the left to the southern hemisphere. आया समझ में? थोड़ा सा आप पढ़ेंगे अपने आप से तो और इजी क्लियरली अंडरस्टैंडेबल हो जाएगा। सो एंड मूव ऑन द इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया, और जहां पर लो प्रेशर बनेगा, अभी मैंने आपको बताया लो प्रेशर कहाँ बनता है? नियर द इक्वेटर। नियर द इक्वेटर लो प्रेशर एरिया बनता है। एंड मूव टुवर्ड्स द इक्वेटोरियल प्रेशर, और ये विंड कहाँ पर जाएंगी फिर? इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया में।
and these winds carry very little moisture. और जब वो इक्वेटोरियल प्रेशर लो प्रेशर एरिया में जाएंगी तो ये कहाँ से आ रही है, नॉर्थ ईस्ट से आ रही है. जब नॉर्थ ईस्ट से आ रही है तो उसके पास क्या है, मॉइस्चर कैरी नहीं किया है उसने. अगर वो साउथ वेस्ट की तरफ से आती, अगर ये विंड्स साउथ वेस्ट की तरफ से आती, दैट विल बी द कोस्टल एरियाज, द ओशंस एंड ऑल, बे ऑफ बंगाल एंड ऑल, तो वहां से वो डेफिनेटली अपने साथ मॉइस्चर कैरी करती. बट ये हमने पढ़ा यहाँ पर नॉर्थ ईस्टर्ली पार्ट से ये ब्लो कर रही हैं, तो नॉर्थ ईस्टर्ली पार्ट से जब ये ब्लो कर रही हैं, दैट मीन्स इट इज कमिंग फ्रॉम द नॉर्दर्न पार्ट एंड दे आर नॉट कैरिंग द मॉइस्चर विद देम. सो and they are coming to the equatorial low pressure area and the winds carry very little moisture, या तो बहुत कम moisture carry करेंगी as they originate and blow over the land, और land की तरफ ही वो originate और blow कर रही हैं. therefore they bring little or no rain, और इसीलिए वो ऊपर की तरफ, यहाँ राजस्थान एरिया और ये ऊपर का जो एरिया है ये बहुत लेस रेनफॉल होता है यहाँ पर, और कम रेनफॉल होता है अगर जो विंड्स नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से आ रही हैं तो. Clear? Hence India should have been an arid land, और अगर इस टाइप से आ रही है तो ये arid land, मगर arid land नहीं है because sometimes because of the reversal of the wind direction due to the monsoon type of climate, reversal होता है wind का. तो ये reversal कहाँ से होता है, अब वेस्ट साउथ वेस्ट की तरफ से जो winds आएंगी ये अपने साथ मॉइस्चर लेकर आती हैं, और ये जब मॉइस्चर लेकर आती हैं तो ये एंटर करेंगी कहाँ पर, जब पूरा डायरेक्शन में एंटर करने लगेंगी तो ये फिर थोड़ा बहुत मॉइस्चर अपने साथ लेकर एंटर होती हैं, और ये रेनफॉल, इससे रेनफॉल प्रेसिपिटेशन वगैरह होता है, तो दैट क्रिएट्स द मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट. इसीलिए टोटली ड्राई लैंड नहीं है अब अपनी इंडिया. अगर टोटली नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स पे डिपेंड करेगी तो ड्राई लैंड बोला जाएगा, बट टोटली नॉर्थ ईस्टर्न विंड्स पे डिपेंड नहीं करती है. इट इज अ सीजनल विंड, इट इज द रिवर्सल ऑफ द विंड्स. सो कभी कभी वेस्टर्न साइड से भी ब्लो करने लगती है विंड्स, तो दैट ब्रिंग्स द रेनफॉल. इन रेनफॉल कब एरिया कब उसका मंथ है, रेनफॉल का मंथ जून टू सितंबर है ना. तो जून टू सितंबर जो विंड्स ब्लो करती है वो यहाँ पर वेस्टर्ली से स्टार्ट करने शुरू हो जाती है, तब वो जाकर के हमारे पूरे ऊपर वाले रीजन्स पे थोड़ा बहुत शावर्स ऑफ ब्लेसिंग्स होती है. क्लियर? Yes. इसीलिए टोटली ड्राई रीजन नहीं है. ये थोड़ा सा बोरिंग तो नहीं लग रहा है? No, ma'am. है ना, No, ma'am. थोड़ा समझने की जरूरत है बस. ये इसीलिए क्लाइमेट चैप्टर में ये थोड़ा प्रेशर, विंड्स, बेल्ट्स और अभी ये जेट स्ट्रीम्स वगैरह आएंगी, ये थोड़ा समझने की बात है. अगर अच्छे से समझ में आ जाएगा तो ये क्लाइमेट चैप्टर समझ में आ जाएगा. ओके, नाउ द प्रेशर. Okay, ma'am. We were on this paragraph only. The pressure and the wind condition over the India are unique. Pressure और wind condition बहुत unique है. अभी मैंने आपको समझाया. During winter there is a high pressure area north of Himalayas. High pressure बना रहता है north of Himalayas में, इसलिए wind direction कहाँ से, north की तरफ से नीचे की तरफ होता है. So cold dry winds blow from this region to the low pressure. और जब वो high pressure northern part की तरफ से होता है तो जो wind area है वो नीचे की तरफ आने लगता है यहाँ. So cold dry winds blow from this region to the low pressure areas. Low pressure areas है near the equator. And in summer the low pressure area develops over interior Asia as well as over northwestern India. Interior Asia में ये low pressure area बन जाता है, and even in India which area? Northwestern part में. Clear? Yes, ma'am. Then air moves, so this causes a complete reversal of the direction of winds, और इससे complete reversal बन जाता है direction winds का. In the summer air moves from the high pressure area over the southern Indian Ocean. southern Indian Ocean से वो high pressure area की तरफ move करने लगती है in a south easterly direction. एक तरफ से south easterly direction में. अब south तो नीचे है, easterly कहाँ पर है, eastern की तरफ, तो साउथ ईस्टर्ली डायरेक्शन में यूं मूव करने लगती है ये विंड्स.
due to the reversal of the winds. In the southeasterly direction, crosses equator and turns right towards the low pressure area. Now this southeasterly direction crosses the equator. अब ये equator को cross कर लेती है and then over the crosses the equator and turns towards the right. और उसके बाद वो right में move करने लगती है towards the low pressure area, जहाँ पर low pressure area बना हुआ है over the Indian subcontinent. जो Indian subcontinent है वहां पर low pressure बना हुआ है. Then these are known as southwest monsoon winds. और ये क्या कहलाती है? Southwest monsoon winds. साउथ की तरफ, ये साउथ की तरफ से आ रही हैं और वेस्ट की तरफ घूम रही हैं. Southwest monsoon winds. These winds blow over the warm oceans, gather moisture and bring widespread rainfall over the mainland of India. And these winds are only responsible for bringing the rainfall in India. Now the upper air circulation, as I have already made you clear what is upper air circulation in this region, is dominated by westerly flow. अब ये जो upper air circulation है ये किससे dominated है? Westerly flow से. An important component of this flow is jet stream. The important component of this flow is jet stream. Now what are jet streams? These jet streams are located approximately over 27 degree to 30 degree north latitude. ये जो jet streams हैं, ये jet streams belt बोलते हैं हम एक तरीके से. ये यहाँ पर है, इक्वेटर से ऊपर की तरफ है ये जेट स्ट्रीम बेल्ट. यहाँ पर क्लियर नहीं है कहीं भी मैप में. इक्वेटर का जो लाइन है उससे जस्ट ऊपर ये जेट स्ट्रीम बेल्ट आता है. सो दे आर ओवर 27 डिग्री टू 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, मींस नॉर्दर्न साइड में. देयरफॉर दे आर नोन एज सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ओवर इंडिया. दीज जेट स्ट्रीम्स ब्लो साउथ ऑफ द हिमालयस. ये साउथ ऑफ द हिमालयस में. अब हिमालय रेंजेस यहाँ पर है, यहाँ हिमालयन रेंजेस है, ये अपना इंडिया है. तो यहाँ पर साउथ ऑफ हिमालयस में साउथ की तरफ ये ब्लो करती हैं जेट स्ट्रीम्स. परमानेंट बेल्ट है एक तरीके से यहाँ पर, ऑल थ्रू द ईयर एक्सेप्ट इन द समर. नाउ वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस एक्सपीरियंस इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री आर ब्रॉट इन बाय दीज वेस्टर्ली फ्लोज ओनली. ये वेस्टर्न की तरफ से जो फ्लो करती हैं स्ट्रीम्स, इसकी वजह से ही ये वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं. The western cyclonic disturbances experienced the north and northwestern parts of the country are brought in this westerly flow. Now in summer the subtropical westerly jet streams moves north of Himalayas. Now in summer में वही monsoon type of climate है, reversal of the wind is there. The subtropical westerly जो jet streams होती है वो कहाँ पर move करती है? नॉर्थ ऑफ हिमालयस. पहले साउथ ऑफ हिमालयस थी, अब कहां पर? नॉर्थ ऑफ हिमालयस. विद द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ द सन के मूवमेंट के अकॉर्डिंग. नाउ एंड ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स कॉल्ड द सब ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम. जो ईस्टर्न की तरफ से जेट स्ट्रीम्स फ्लो कर रही है वो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स कहलाई जाएगी. जो वेस्टर्न की तरफ से फ्लो कर रही है वो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ब्लो ओवर पेनिनसुलर इंडिया. अब जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स है वो कहां पर ब्लो करेंगी? पेनिनसुलर इंडिया में. क्लियर? अप्रोक्सीमेटली ओवर 14 डिग्री नॉर्थ ड्यूरिंग द समर मंथ. स्पेशली दीज ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ब्लो ओवर पेनिनसुलर इंडिया टूवर्ड्स द 14 डिग्री नॉर्थ ड्यूरिंग द समर मंथ स्पेशली. क्लियर? Hello. Yes, ma'am. Okay. Now western cyclonic disturbances. The western cyclonic disturbances are weather phenomena. What is western cyclonic disturbance? They are the weather phenomena, weather condition of the winter months.
ये वेस्टर्न साइक्लोनिक कहाँ की कंडीशन है, विंटर मंथ्स की वेदर कंडीशन है, ब्रॉट इन बाय द वेस्टर्ली फ्लो ऑफ मेडिटेरियन रीजन। ये मेडिटेरियन रीजन से जो वेस्टर्ली फ्लो होता है अपने प्रेशर का, विंड का, उसकी वजह से ये वेस्टर्ली साइक्लोनिक डिस्टर्बेंसेस क्रिएट होते हैं। दे यूजुअली इन्फ्लुएंस द वेदर ऑफ द नॉर्थ and occur during the monsoon as well as in the October region. So westernly, W for westerly, W for winter months. ये याद रखना. Easterly, Okay, the ma'am. summer months. Then these disturbances affect the coastal regions of the country. Coastal regions को भी ये affect करते हैं westerly cyclonic disturbances. Have you read or heard about the disaster caused by them in Orissa and Andhra Pradesh coast? Andhra Pradesh coast में ये westerly cyclonic disturbances create हुए थे Orissa में, Orissa and Andhra Pradesh में. So you read by yourself. If any doubt, you can ask me in the next class. In our Okay, next class, ma'am. we'll continue with the Thank you, ma'am. Indian monsoon. Okay. Thank you, ma'am. Have a nice day, ma'am. Have a nice day, ma'am. Thank you.